बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अहमद स्किल्स एकेडमी। आज हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर था तकरीबन मैट्रिक या केमिस्ट्री में फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री या पंजाब बोर्ड या केपी के या सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड जितने भी हैं तकरीबन सब में इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है वो सेम ही है, कोई इतना ख़ास डिफरेंस उनमें नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को लिखने का हमने देखा था कि हाउ यू हैव टू राइट डाउन द केसी वैल्यू फॉर ए रिएक्शन। अब अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस इफ़ दे आर इन्वॉल्व्ड partial pressure, there is number of moles, and if mole fractions are involved in the equilibrium constant expression, then how we can write down the Kc value for them. Instead of Kc, then we will write down the Kp value, Kn value and Kx value respectively if they are expressed in terms of partial pressure, if they are expressed in terms of number of moles, and if they are expressed in terms of mole fractions. उस sum के लिए let's suppose a general reaction, that is A and B react to form C and D along with their coefficients small a, small b, small c and small d. Now there is a law which is called as Henry's law. According to this law, the partial pressure of a gas is directly proportional to the molar concentration at constant temperature. It means कि जो हमारे पास इस इक्वेशन से अगर हम Kc वैल्यू लिख दें, so writing down the Kc value, products divided by reactants, each raised to their power equal to their coefficient. लेकिन according to Henry's law is the molar concentration, the concentration of C, D, A and B which are expressed in square brackets. These are basically the molar concentration of the reactants and the molar concentration of the products. Now according to Henry's law, they are basically present in gaseous form. All these, अगर यहाँ पे आप गौर कर ले तो सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास गैसियस स्टेट में मौजूद है। सो व्हेन अ रिएक्शन इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, देन द मोलर कंसंट्रेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। सो ऑल द अमाउंट्स ऑफ सी, डी, ए एंड बी विच आर एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम रिप्लेस करेंगे किस पे? पार्शियल प्रेशर पे, क्योंकि सारे गैसियस फॉर्म में हैं। जब हम पार्शियल प्रेशर पे रिप्लेस करेंगे देन Kc वैल्यू इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय Kp। यहाँ पे हम Kp लिख देंगे। सो Kp इज इक्वल टू, नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज़ टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़ टू पावर D, partial pressure of A raised to power A and partial pressure of B raised to power B. Now this reaction which is in gaseous state, that can be expressed by this expression. So the equilibrium expression for the reaction in which all the reactants and products are present in gaseous form, that will be Kp, not Kc. अगर हमारे पास concentration जो है वो number of moles के terms में express किया गया हो, then हम फिर क्या करेंगे? When the equilibrium constant expression, they are expressed in number of moles, so the equilibrium constant is written as Kn. So Kn again method वही है, number of moles of products divided by number of moles of reactants. लेकिन gaseous के का form में molar concentration is replaced by partial pressure. In terms of moles, the molar concentration is replaced by number of moles. So इन सारों को हम replace कर लेंगे n से. So Kn is equal to n of C raised to power small c, n of D raised to power small d, n of A raised to power small a and n of B raised to power small b. ये रिएक्शन होगा जब आपके पास एक्सप्रेशन सारे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है उनके नंबर ऑफ मोल्स एक्सप्रेस किए गए हो। अगर नंबर ऑफ मोल की बजाय मोल फ्रैक्शन प्रोवाइडेड हो, देन द इक्वेशन इज रिटन एज Kx, जहाँ पे x का मतलब क्या है? x इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द मोल फ्रैक्शन, जो कि हम लेटर ऑन फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के चैप्टर्स में सोल्यूशन में भी पढ़ेंगे और बाकी कुछ चैप्टर्स में जगह जगह पे राउंड्स लॉ में भी आएगा, तो मोल फ्रैक्शन वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ Kx इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ C, x ऑफ C रेज़ टू पावर स्मॉल c, मोल फ्रैक्शन ऑफ D रेज़ टू पावर स्मॉल d एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A रेज़ टू पावर स्मॉल a, mole fraction of B raised to power small b. Now basically these are three equations, three different expressions which are used for expressing the partial pressure, the number of moles and mole fraction. अब ये जो partial pressure है या number of moles के लिए या mole fraction के लिए जो expression है, इनका
Kp के साथ क्या रिलेशन है या Kc के साथ क्या रिलेशन है। इसके लिए आप ऊपर लिंक पे देख लें, मैं ऊपर लिंक पे आप वीडियो है मैं इस पर एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, वो सारी कैलकुलेशंस करके आपको ये एक्सप्रेशन वहाँ से मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ऊपर लिंक पे आप क्लिक करें, आप उस वीडियो की तरफ चले जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, उसके एंड प्रोडक्ट जो है कि एंड का रिएक्शन इसका क्या होगा वो मैं लिख लेता हूँ। अब हमारे पास क्या रिलेशन है Kp का, Kc का, Kn, Kx, इन सब का एक रिलेशन बनता है जिसका फाइनल प्रोडक्ट अगर हम Kp से Kc के साथ उसका रिलेशन कंपेयर कर ले, सो फ्रॉम दिस रिलेशन व्हेन द reactants and products are present in gaseous form and the K expression, the equilibrium constant expression is written in the form of Kp, and how it is related to Kc। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, लिंक ऊपर वीडियो आ रही होगी, उस लिंक पे आप क्लिक कर लें, वहाँ पे मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसकी दी है, हाउ इट कैन बी प्रूव्ड दैट Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kn एंड Kx एंड ऑल दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो लेकिन फाइनल इस टॉपिक के साथ रिलेटेड Kc के साथ जब हम रिलेट करते हैं, सो Kp इज इक्वल टू Kc multiplied by RT raised to the power delta n. Similarly, if number of moles are represented, so then Kp is related to the Kn in this way, that it is equal to Kn multiplied by P divided by capital N raised to power delta n. Similarly, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन में दी गई है, तो then Kx is related to Kp, that Kp is equal to Kx multiplied by P raised to power delta n। अब ये तीनों रिएक्शन जो ग्रीन में मैंने मेंशन किए हैं, इन सारों को आप लिंक पे क्लिक करके, ऊपर लिंक पे जब क्लिक करेंगे इस वीडियो की तरफ आप चले जाएंगे, वहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी।